Hello my dear students of Standard 8. Welcome you all in today's online class. My dear students, as you know all it very well that we have completed chapter 13 from discussion section. The name of the chapter was sound. So dear students, chapter number 13 we have completed, and the written format of copy work will be provided to you in the PDF format by tomorrow. So dear students, it's your accountability to be updated with the syllabus, procedure and the contents which is being taught by me. So it's your moral duty, students, to prepare all the copy work, to maintain copy work and activities that is instructed to you by the teacher, including me also. So dear friends, you must be engaged in performing activity. If you ignore, if you avoid the activity which is being carried out by the teacher, so it will be never excusable. So it will be never be excused. So dear friends, your little mistakes can never be forbidden, and the copy work which you complete in time and send to me in the PDF format, you will be provided the marks in the portfolio section, that is notebook work, and the subject enrichment and activities which is being carried out by the science teacher. So you must perform the same one activity at the home. So dear friends, I hope all of you understood about the terms syllabus regarding the information. I have already uploaded the syllabus, pen paper test and subject enrichment and activities. The chapter has been categorized into the parts. So dear friends, you must be careful about the syllabus, procedure and the content which is in running format. So dear friends, after successful completion of the chapter, that was the chapter 13, and now we are moving towards the chapter 14, and this will be the part of pen paper test 2 also, pen paper test as a term 2. Okay, so this chapter will be considered as the term 2, final terms. Okay, and in the written format, it means pen paper test. So this chapter will be more valuable for the perspective of the written test that will be organized as a final term, final term examination. It means yearly examination. So dear friends, chapter 14 from today, this chapter will be taken as consideration. The name of the chapter is Chemical Effect of Electric Current. Okay, and after completing this chapter, we will move towards the chapter 16. The name of the chapter is Light. Okay, so when these three chapters will be completed, so it means we have completed a pen paper test syllabus. Okay, and then we have to move towards the subject enrichment activities and some activities based problems. Okay, so we will describe, that's the matter for further discussions. So we must concentrate towards the current topic which will be started from today, and we have selected the chapter 14, Chemical Effect of Electric Current. So dear friends, chemical effect of electric current, this chapter will be considered as a running progress. And dear friends, आप यहाँ पे देखते हो कि current क्या होती है? What is current? First of all, we must know about the terms current. Dear friends, all of you know the importance of current, and you are familiar with the words current because we have described static current in the chapter that was running. The name of the chapter was, which chapter was running? That, students, in which we have described about the static current and the force. Okay, force and pressure. In the force and pressure, there was a static electrostatic force. So in the electrostatic force, you have seen that the charge that play very important role in the conduction of electricity. जैसे आपने देखा था कि जब हम कॉम्ब को हेयर में रब करते थे तो कॉम्ब को कहते थे चार्ज हो गया. ओके, जब उसको टेनी पीस ऑफ पेपर के पास लाते थे तो वो कॉम्ब को क्या करता था स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करता था. ओके, तो कॉम्ब को तो आपने रब किया है हेयर से, तो कॉम्ब तो चार्ज हो गया. तो ये किसी अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को जब पास में लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि टेनी पीस ऑफ पेपर, तो वो तो न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है. We have not done the same procedure with the tiny piece of paper.
we have also done the experiment by using the comb. So comb was being used, but piece of paper is still left in the position. So because when we bring the same charged comb nearby the tiny piece of paper, the tiny piece of paper gets attracted towards the comb due to the induction of charge. So dear students, the concept of charge and electricity generation, this procedure will be considered today. So current क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो आप कहते हो कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। एक्चुअली करंट जो होती है दैट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज। सो अब हम अगर करंट को देखें, करंट चार्ज को अगर हम Q से इंडिकेट करें स्टूडेंट्स, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट। Q इक्वल टू IT होता है स्टूडेंट्स, वेयर I इज द करंट। सो I को अगर मैं देखें करंट क्या कैसे डिफाइन करेंगे तो Q बाई T है, Q बाई T। देखिए Q रिफर्स टू द चार्ज, Q क्या रिफर कर रहा है स्टूडेंट्स, चार्ज को। ओके, आप स्मॉल q भी बना सकते हो, जैसे Q इक्वल टू IT हो गया, ठीक। तो चार्ज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, ठीक है। तो I को मैं यहां से अगर निकालूंगा स्टूडेंट्स तो I इक्वल टू Q बाई T। तो Q बाई T यहां से हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट, चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी के स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई चार्ज है, करंट है, वो पर यूनिट टाइम पे फ्लो हो रही है, चार्ज दैट विल बी एसोसिएटेड विद द करंट। ओके, तो चार्ज क्या होते हैं, आप ये क्वेश्चन अराइज करेगा कि ये चार्ज है कौन। तो जनरली जो मेटल में चार्ज होता है स्टूडेंट्स, चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन एंड इज कंसीडर्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वायर में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा जो चैप्टर है ये हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो केमिकल यू ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द केमिकल, केमिकल मतलब कोई केमिकल मटेरियल्स, लिक्विड सॉल्यूशंस, एवरीथिंग्स। ओके, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे मैंने सॉलिड में बताया, सॉलिड में तो फ्लो होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो मैं अगर किसी लिक्विड को, कोई लिक्विड कंसीडर करूं, लिक्विड सॉल्यूशन अगर दिया जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पे तो सॉलिड में जैसे वायर है स्टूडेंट्स, दिस इज द वायर। ओके, वी कैन टेक एन वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट दिस इज वायर, ओके, एंड वायर इज लाइंग ऑन द टेबल। जैसे मान लो ये मोटी सी वायर है, ठीक है। अब ये वायर है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अभी नहीं होगा जब तक इसको हम कहीं कोई कनेक्शन नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं आएगी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनि डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो पाएंगे, यूनि डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे जो होता है वो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे। तो इनके मूवमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएंगे किधर आएंगे। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते, उसको कंडक्ट नहीं करा सकते। तो लिक्विड में स्टूडेंट्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वहां पे आयंस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। क्या कंसीडर करते हैं, आयंस, आयंस को कंसीडर करते हैं। तो आयंस के बारे में बताने से पहले लेट अस डिस्क्राइब अबाउट द वर्ड्स केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके हम सॉल्यूशन बनाएं, जैसे शुगर को वाटर में डाल दें तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये वाटर भरा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज द वाटर इन द बीकर, और इसमें हमने क्या कर दिया, साल्ट डाल दिया, ठीक है। अगर मान लो हमने साल्ट डाल दिया इसमें, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द साल्ट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में बात कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस कंडक्टिंग नहीं होते, अभी मैं बताऊंगा कुछ सॉल्यूशंस नॉन कंडक्टिंग भी सॉल्यूशंस। इट कॉजेस अ केमिकल रिएक्शन,
अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए, एक केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज दिखेगा, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर है स्टूडेंट्स, वाटर आपका जैसे प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, कोई भी उसमें साल्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। जैसे साल्ट सोल्यूशन लिया जाए, साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ सोल्यूशन बना दिया साल्ट सोल्यूशन, तो साल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है या नहीं होता है, इसकी हम लोग एक एक्टिविटी करके इसकी वेरीफाई कर सकते हैं और इस चीज का हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं, साल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास देखिए ये साल्ट सोल्यूशन है, ओके, मैंने यहाँ पे बनाया है साल्ट सोल्यूशन। अब साल्ट सोल्यूशन में ये एक बैटरी सोर्स है, बैटरी सोर्स इज कनेक्टेड, ओके, व्हेनेवर वी कम्स these two dip inside, अगर मैं यहाँ पे दोनों टर्मिनल को इसके अंदर डिप करूं तो ये हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, इसकी जांच कर लेते हैं। तो जैसे इस सोल्यूशन में हम लोग लाएंगे, ये बल्ब जल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स जल रहा है, ठीक है, द बल्ब इज ग्लोइंग। तो इसका मतलब है कि साल्ट सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेगा। तो क्या और भी सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली जो साल्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हमारा जो टूटेगा आयंस में Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, तो ये कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है। तो आयंस हमारे कितने होते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आयंस, फर्स्ट इज cations and another is anions। cations क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज cations? cation जो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये देखो कटा हुआ आयंस, इसको पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं cations। और ये जो सिंपल ऐसे है, यहाँ पे देखिए ये वाला cations है, दिस इज cation एंड दिस इज anion। तो cation और anion, सोडियम क्लोराइड को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया, सोडियम क्लोराइड साल्टी है, मान लो क्रिस्टल फॉर्मेट में है, इसको हमने वाटर में जाके डाल दिया। तो जैसे मान लो ये वाटर पहले से है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, साल्ट सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट सोल्यूशन। तो इसमें जो सोडियम, बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड में ये ब्रेक हो जाएगा, यानी इसमें बहुत सारे सोडियम और बहुत सारे क्लोरीन आपस में अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, यानी सोडियम और क्लोरीन में ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसे डिसोसिएशन हो जाएगा इसका, तो ये आयंस में ब्रेकअप हो जाएंगे। तो ये जो आयंस में ब्रेकअप हुआ है, जो पॉजिटिव और निगेटिव, दिस आयंस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जब कभी हम लोग अर्थिंग बनाते हैं, अर्थ वायर स्टूडेंट्स, तो अर्थ वायर में हम लोग कुछ मटेरियल डालते हैं। अर्थ वायर क्यों बनाते हैं, अर्थ वायर क्यों होती है, क्योंकि अर्थ वायर जो होती है, अर्थ कैन अडॉप्ट द चार्ज, देयर इज नो एनी लिमिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्ज इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ बहुत सारे चार्ज को अपने अंदर समा सकती है, इसकी कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना चार्ज अर्थ अपने अंदर ले सकती है। अर्थ इज नोन एज द एब्जॉर्बर और इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। अर्थ इज कंसिडर्ड एज द इन्फिनिटी चार्ज एब्जॉर्बर बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द चार्ज विथ नो एनी मैग्नीट्यूड। यानी अर्थ इसीलिए बनाया जाता है कि घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो, कभी फ्लक्चुएशन हो, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ के अंदर चले जाएं, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो प्रकार के चार्ज डेवलप होते हैं। तो कैटायंस और एनायंस कैसे डेवलप हुए स्टूडेंट्स, डेवलप कैसे होते हैं, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, कैटायन कब फॉर्म होगा, एनायन कब फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग जांच करेंगे।
तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कोई भी हमारा एटम है, जैसे ये ए है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा स्टूडेंट्स प्लस आएगा, और यहाँ पे सिंबल दिखा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिया। अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इसी में ऐड इस तरह होगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा स्टूडेंट वो नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो, ठीक है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो ई माइनस ऊपर दिखा रहा हूँ सिंबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, नेगेटिव, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 कूलम। कितना होता है स्टूडेंट्स इस पे चार्ज? 1.6 माइनस में नेगेटिव 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इसका जो मास होता है ईएम, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10 10 रेज माइनस 31 केजी। अब जरा यहां देखिए 9.10 10 की पावर माइनस 31 केजी। अब जरा इसे अंदाजा लगाइए कि ये कितना छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, माइनस 31 केजी। ये बता रहा है कि इसको नीचे लाएंगे 31 हो जाएगा, 9.1 में 10 की पावर 31 से डिवाइड करें तो कितना छोटा आएगा वैल्यू। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास मैंने यहां लिख दिया, प्रोटॉन का मास 1.67 10 पावर 27 केजी। अब न्यूट्रॉन का मास दैट इज सिमिलर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज equal to the charge of an electron, but there is a difference. The charge present in the proton will be considered as the positive, but there will be the same magnitude. अब आप जरा इसे देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर कोई रिड्यूस कर देगा तो उस पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर वो एडॉप्ट करता है तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जब हम किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन, जैसे मान लो NaCl है, NaCl में देखिए इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड, आयनिक बॉन्ड, ठीक, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब कोई एक मेटल्स दूसरे नॉन मेटल से कंबाइन होता है, कोई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, दैट जनरली इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स जैसे बात आई थी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो क्या सारे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे कुछ सॉलिड मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें कुछ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, किसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर वर्ड्स हम लोग पहले से ये सब चीजें हमको पता होती है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमको स्टूडेंट्स ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड्स है ये सब सारी चीजें आप 7th में भी पढ़े हो। तो स्टूडेंट्स हम कुछ एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या सारे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ये एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ये मैंने बनाया है लेमन जूस। ओके, तो लेमन जूस दैट इज द सेट्रिक जूस, और सेट्रिक इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है एज द एसिड। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जल्दी करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है, बेस भी करते हैं, साल्ट भी करते हैं, वाटर भी करेगा। तो जैसे अब यहाँ पे हमारे पास सेम सोर्स बैटरी है स्टूडेंट्स, आई हैव द सेम सोर्स ऑफ बैटरी एंड दिस इज द 2 wires, one is dipped in this and another is dipped also in this. Okay, so एक यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे जोड़ा है, एक फिर मैंने जोड़ा और इसको दोनों को यहाँ पे डिप किया, इससे हमको दिखा कि यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, हमारा बल्ब इज ग्लोइंग। जैसे यहाँ पे मैंने देखो डिप किया, एक ऐसे एक ऐसे, तो इससे यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट बल्ब इज ग्लोइंग। इससे पता ये चल रहा है स्टूडेंट्स कि एसिड्स जनरली जितने होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं।
लेकिन जैसे एल्कोहल्स होता है स्टूडेंट्स, एल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑयल होते हैं, ग्रीस ऑयल होते हैं, पेट्रोल होते हैं, केरोसिन, जल्दी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं। तो कुछ लिक्विड्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बात किस वजह से है? एसिड जल्दी क्यों करते हैं? जैसे विनेगर विच इज नोन एज द एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये देखिए CH3COOH, तो ये हमारा एसिड है। विनेगर एसिटिक एसिड, इसको नाम इसका एसिटिक एसिड भी है, और कमर्शियल नेम इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड, ओके। और इसका जनरली नेम है, ये देख सकते हो, एसिटिक एसिड, जिसे आम भाषा में विनेगर सिरका कहते हैं हिंदी में। तो ये इसका pH वैल्यू बहुत कम होता है, लो pH वैल्यू है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो प्रकार के हैं। जब इसको हम ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, वाटर में जब ये आयनाइज होगा तो ये CH3COO माइनस में और H+ रिलीज होगा प्रोटॉन, ठीक है। देखिए H+ और CH3CO माइनस, तो ये CH3CO माइनस और H+ will play a very important role in the conduction of electricity। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। जैसे और जैसे शुगर होता है, शुगर साल्ट्स, नॉन शुगर साल्ट जो हमारे होते हैं, जितने भी शुगर सॉल्यूशंस आप बना के देखो, ये आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जैसे NaCl की तरह। इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि सब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिसमें आयंस चार्ज प्रोड्यूस होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, जिसमें नहीं करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक एक्टिविटी और करके देख लेते हैं। जैसे मिल्क है, एक्चुअली मिल्क करता है क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए इसमें मैंने सोल्यूशन फिर चेंज किया, मैंने मिल्क लिया। अब मिल्क में अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डालेंगे, मिल्क में देखेंगे दो वायर, देखिए मैंने दो वायर अलग अलग कनेक्शन लिया है। एक वायर इसमें इस साइड डिप करूंगा मिल्क में, एक को मैं ऐसे जोड़ूंगा और देखूंगा बल्ब। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने मिल्क में दिखाया था आपको, मिल्क का लिया था, तो मिल्क में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हुआ था। तो मिल्क में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है स्टूडेंट्स। जैसे ये मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है, ये बल्ब है, दोनों को इसमें डिप कर दूंगा, देखेंगे कि बल्ब आपका देखिए जल रहा है, बल्ब इज ग्लोइंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स क्लियरली। So thank you students for watching today's video, and you have to do some activity at home which will be given as the homework. Thank you students for watching today's video. Dear students, take a screenshot of the whole blackboard so that you can get the proper homework. Dear students, take a screenshot so that you can have the homework. Thank you students for taking a screenshot. Don't forget to complete the work because you have to send it by tomorrow, because tomorrow means on Friday. Thank you students for watching today's video and taking a screenshot.